Now today let's start with chapter number 3, motion of the earth. Our earth do two types of motion, rotation and revolution. If we talk about rotation, it takes 24 hours to complete one rotation and it takes 365, 1 by 4 days to complete one revolution. In rotation, there is a changes in day and night, and in revolution, we will see the changes in our season. So let's start with the chapter now. Every day we notice that the sun rises in the east or sets in the west. We always conscious of the apparent movement of the sun, but very little realize that earth on which we live, जिस पे हम रह रहे हैं, वो constantly क्या कर रहा है? Move कर रहा है. When the sun disappears, we say that sun sets, while when it emerges, we say that sun rises. So, in the fact, sun is stationary and the earth is moving constantly. And we have studied in the previous chapter also that earth is a planet which moves around the sun. वो क्या करता है? Around the sun move करता है, right? To understand this concept, we take an example. Like you are traveling by a train. हम एक ट्रेन से travel कर रहे हैं, right? While seeing outside, हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो भी क्या कर रही है? Move कर रही है, लेकिन opposite direction, right? So the earth do two types of motion. It spins on its axis and complete one rotation in about 24 hours, right? Motion of the earth is called rotation. If we talk about simultaneously जो earth है वो goes around the sun और इस motion को क्या कहा जाता है? Revolution. And it takes 365 days, 4 hours to complete one revolution, right? The earth axis is an imaginary line जिससे क्या होता है? आपका जो graphic center होता है वो आपका earth होता है जो spin करता है and the axis is tilted at the angle of 23.5 from the vertical to the orbital plane. Next is rotation. The daily movement of the earth on its axis from west to east, उसे हम rotation कहते हैं, and it takes 24 hours. 24 hours लेता है to complete one rotation और उस period को क्या बोला जाता है? Earth day, right? We call it Earth day. Imaginary line joining the north to south pole. The axis is tilted at the angle of 66.5 of the plane and the tilt is in the same direction and the same angle. जो tilt होगा वो same ही direction में होता है और same ही angle में होता है, right? Now this means that the earth moves from west to east, so sun appears to be moving. तो अर्थ जो है वो कैसे मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट. तो आपको सन कैसा मूव करता है वो दिखाई देता है? ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट होता है. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन है अर्थ का वो डे और नाइट कॉज करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू एन एक्टिविटी. पुट अ ग्लोब इन अ डार्क रूम. आप एक ग्लोब लियो तो डार्क रूम में रखो एंड इन फ्रंट ऑफ टॉर्च लाइट. डार्क रूम लिए टॉर्च लाइट लेनी है आपको एंड हाफ ऑफ द ग्लोब फेसिंग टॉर्च इज लिट अप, द अदर हाफ इन डार्कनेस. रोटेट द ग्लोब and you will find gradually the part that was in darkness वो फिर lighted part में चला जाता है. यही क्या होता है? रोटेशन. यही क्या वे है कि आपके क्या होती है? डे और नाइट होती है. Now similarly when earth rotate on its axis one of the half is, देखो अब अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो जो पार्ट उसका सन फेस करेगा वहाँ डे होगा और जो पार्ट फेस नहीं करेगा सन को वो नाइट होगा. दिस इज हाउ डे एंड नाइट आर. When the sun is directly overhead at any point of the earth's surface, the time of that is 12 noon. देखो जब क्या होगा? डायरेक्टली सन की रेस पड़ रही होंगी तो वो आपके क्या होगी? 12 noon. देखो ना बहुत तेज धूप होती है 12 बजे करीब. And after 12 noon, when the same area has moved eastward, it is said to be afternoon. हम कहते हैं ना afternoon. After 12 o'clock, what we say? Afternoon. And brief period of diffuse light between sunset and complete darkness is called डस्क. देखा एक क्या होता है? सनसेट के बीच वाला और पूरी कंप्लीट डार्कनेस के बीच वाला टाइम क्या होता है? वो डस्क होता है. आपको वो याद रखना है. एंड द टाइम बिफोर नून इज मॉर्निंग एंड द ब्रीफ पीरियड इज डिफ्यूज लाइट बिटवीन सनसेट एंड फुल सनराइज और फुल डे के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है? आपका डॉन का टाइम होता है. द सन रेज आर स्लैंटिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एरिया एंड गिव लेस हीट पर यूनिट एरिया. देखो जो सन रेज होती है वो मॉर्निंग में थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है, टेढ़ी पड़ती है एज कम्पेयर टू इवनिंग. मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में आप देखेंगे कि जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है, और एक वो लॉन्गर एरिया को कवर करती है. एंड द सनरेज आर वर्टिकल. और जो सनरेज होती हैं वो वर्टिकल होती है. कब? नून में. इट इज वर्टिकल इन नून. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन? What are the different effects of rotation? First is east-west movement. Since the earth rotates from west to east,
और आपको सन राइज करता है ईस्ट में और सेट का करता है वेस्ट में, तो वो ईस्ट से वेस्ट चलता है और अर्थ आपका वेस्ट से ईस्ट मूव करता है। देन नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। देखो अर्थ कॉजेस चेंजेस, वो कंसिस्टेंट चेंजेस करता है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा जो फ्लो ऑफ विंड है, ओशन वाटर है, उसमें भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। देन वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर में वो भी आपका किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि जो पार्ट क्या रिसीव करता है, जो पार्ट डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है वो ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पे स्लैंटिंग होती है वहाँ थोड़ा ठंडा होता है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑन द अर्थ सर्फेस of the earth axis. Now effects of inclination of the earth axis. As a result, the inclination tilt of the earth axis, the circle of illumination and circle dividing the lighted part of the earth from the dark half. जो dark half से circle के lighted part भी divide करता है उसको क्या बोला जाता है, circle of illumination. Illumination मतलब lighted part जो होता है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स है वो इक्वल होती है, जो डे और नाइट की जो लेंथ होती है थ्रू आउट द ईयर वो इक्वल रहती है इस जगह पे। एंड जो एक्सेस वुड बी हैव बीन वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, जो सन रेज हैं दे वुड फॉल इन द सेम मैन, ठीक है, हमेशा जो सन की रेज है वो आपकी वर्टिकल ही पड़ेगी। नाउ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर बट एट द इक्वेटर दे आर ऑफ सेम डायरेक्शन एज सन रेज फॉल्स ऑलवेज वर्टिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये डार्क पार्ट है, ये नाइट वाला और ये डे वाला। यहाँ सन सेट हुआ है, यहाँ सन राइज हुआ, मून लाइट है यहाँ पे, राइट। सो देयर आर मोर आवर्स इन सनलाइट। देखो समर में क्या होता है, ज्यादा डे होता है, सनलाइट वाला पार्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट। तो दीज पोल्स अल्टरनेटली हैव कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months फॉलोड बाय डार्कनेस ऑफ 6 months। डार्कनेस भी 6 months की और लाइटेड पार्ट भी 6 months का होता है। नाउ दिस experiment is given to you. Now do the experiment. You have to take a globe. I have told you before also. First step is take a torch and a globe. Place the globe on this table and put light on the. आपके डार्क रूम पे रखना है, एक टॉर्च देनी है, फिर आप स्विच ऑफ करोगे, बंद कर दोगे लाइट रूम की। Then mark 4 circles at different places on the globe with the help of marker in front of the torch. Now you will see that only torch facing part of the globe. देखो जो इस पार्ट को फेस कर रही है, ठीक है, उसी पोर्शन में आप देखेंगे लाइट है और अपोजिट पोर्शन में लाइट नहीं है, मतलब बी वाले में लाइट नहीं है। Now in a given figure, torch represent the sun and the globe represent our earth. The 4 circle prefer A, B, C, D situated at different places on the earth. आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको दिखाया भी था। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सिटी डी एक्सपीरियंस सनराइज और सिटी सी एक्सपीरियंसेस योर सनसेट। एंड इफ यू रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या व्यू करेगी, डे एंड नाइट को। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिवॉल्यूशन। सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो मूवमेंट होती है अर्थ की अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक्स? इट टेक्स 361/4 days to complete one revolution, and there are changes in the season. So the extra days is added to the month of February. Every month year has 366 days, और उस ईयर को जिससे 366 डेज होते हैं उस ईयर को क्या बोला जाता है, लीप ईयर। And the earth revolve around the sun in an elliptical orbit at speed of 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, और आपका 1 लाख किलोमीटर जाता है 1 आवर में। While revolving around the sun, जो आपका अर्थ एक्सिस है वो इंक्लाइंड है वन साइड के। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या फेस करता है, सन ड्यूरिंग द सम पीरियड ऑफ द ईयर। Then we have elliptical orbit of the earth. The earth moves around the sun in an elliptical or elongated orbit called elliptic. Elliptical orbit means an orbit the shape of which is an ellipse. An ellipse is not a complete circle. जो eclipse होता है वो अपने आप में एक complete circle नहीं होता. So we take a pencil or 2 pin and you will top pin and loop the thread. Fix the pins on the paper but the loop so that it encloses 2 pins inside the loops. Now what you will do, you will hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving
pencil along it. So as we now here having 366 days in leap year, the surplus day is added to the month of February. और जो surplus day है उसको आप कहाँ ऐड कर देते हैं? मंथ ऑफ February में. तो कितने हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं. What are the different effects of Earth revolution? पहला क्या है कि जो आपके डेज और नाइट होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. So the axis of the Earth is tilted at the angle of 66.5 one side direction, and northern hemisphere remains inclined towards the sun during 6 months every year. और ये जो large part होता है आपका, northern hemisphere faces sun during the period and lighted for a longer period. Every point this part of the earth remain lighted for a longer period. देखो जो आपका northern hemisphere वाला part होता है, क्योंकि sun की रेस क्या पड़ रही है? डायरेक्टली पड़ रही है, तो वो ज्यादा टाइम तक, ये वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा टाइम तक क्या होता है? लाइटेड होता है. राइट, ज्यादा टाइम तक क्या होता है? लाइटेड होता है, मतलब डे ज्यादा होता है. जब अवे होता है, सन से दूर होता है, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या होता है? शॉर्टर होता है, छोटा होता है. नाउ इफ यू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल, यू विल फाइंड द सर्कल विल ऑलवेज बी इन सनलाइट. जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे आप देखेंगे कि वो हमेशा सनलाइट की तरह होगा. ठीक है. And the North Pole will have no light, but it will have 24 hours days. At the same time, South Pole will have 24 hours day and no night. देखो उल्टा होता है, साउथ पोल में 24 आवर्स का डे रहेगा लेकिन कोई नाइट नहीं होगी. वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ पोल में कोई डे नहीं होगा 24 आवर्स की, कोई नाइट नहीं होगी और 24 आवर्स का क्या होगा? डे होगा. नाउ चेंज ऑफ सीजन. आप देखते हैं कि वी एक्सपीरियंस 5 सीजन. In India, basically, we have 3 seasons: summer, winter, or rainy season. So, changes in season. Now, first is summer solstice. 21st June, northern hemisphere जो tilted है towards the sun, और जो rays of sun होती है वो डायरेक्टली और वर्टिकली कहाँ फॉल होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. कहाँ फॉल होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. एंड दीज एरिया रिसीव मोर हीट. ये एरिया जो है ज़्यादा हीट मिलती है इन्हें, और जो एरिया होता है नियर द पोल वहाँ पे लेस हीट होती है. वाई? क्योंकि जो सनरेज होती है वो कैसी होती है? स्लैंटिंग पड़ती है हमारी नॉर्थ पोल पे. देखो जैसा अभी ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये आपके पोल्स हो गए, यहाँ पे आपका सन हो गया, तो रेज देखो थोड़ी स्लैंटिंग पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? हीट कम जा पाती है. एज द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, द रीजन फ्रॉम द नॉर्थ टू द आर्टिक सर्कल इज अंडर कंटिन्यूअस सनलाइट. देखो जो रीजन है नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल के बीच में, वो हमेशा क्या रहता है? अंडर द सनलाइट रहता है 24 आवर्स तक. लाइक नॉर्वे और स्वीडन, आपको याद रखा ये 2 कंट्री है वेयर द फिनोमिना ऑफ मिडनाइट सन इज सीन. आपको अगर देखेंगे जो मिडनाइट सन वाला जो रीजन है या कंट्रीज है वो कौन सी है आपकी? दे आर नॉर्वे एंड स्वीडन. द रीजन एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months. यहाँ पे पूरे 6 महीने के लिए क्या रहते हैं? दिन रहता है. ठीक है. सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इन द समर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो पोजीशन होती है अर्थ की वो क्या होती है आपकी? समर सोलेस्टिस. ये लॉन्गेस्ट डे होता है, इस दिन शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और ये कौन सा टाइम होता है? 21 जून का. नेक्स्ट इज विंटर सोलेस्टिक, जहाँ पे क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है. और ये कब होता है आपका? ये आपको देखना है ये कब होता है आपका? नाउ एट दिस टाइम ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन. साउथ पोल क्या होता है? अवे होता है सन से, और वो टोटल डार्कनेस होती है वहाँ पे, उसको आप विंटर सोलास्टिक कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. और जो पोजीशन ऑफ द सन होती है विंटर सोलास्टिक में सदर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है. और सदर्न हेमिस्फीयर में कब? 21 जून. द रीजन फ्रॉम द साउथ पोल टू द एंटार्क्टिक सर्कल, ये क्या होता है? डार्कनेस में रहता है 24 आवर्स के. फिर है आपका लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, एंड इन द समर in the southern hemisphere with longer day and shorter night, reverse happen in the northern hemisphere. northern hemisphere में winter solstice होती है, मतलब आपका जो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और ये कब होता है? 22 दिसंबर को. नाउ लेट्स सी इन दिस डायग्राफ. देखो सन रेज क्या हो रही है यहाँ पे? डायरेक्टली बढ़ रही है. राइट. तो यहाँ पे समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका समर सोलास्टिक 21 जून को.
और यहाँ पे विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और समर है सदर्न हेमिस्फीयर में। कब होगा ये? आपका 22 दिसंबर को, और ये क्या होगा? विंटर सोलेस्टिस। अब यहाँ पे बात करें कि सनराइज डायरेक्टली पड़ रही है, इक्विनॉक्स का पीरियड है 21 सितंबर, क्या होगा? स्प्रिंग होगा सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम। अब यहाँ पे हम उल्टा देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा आपका ऑटम, और ये भी इक्विनॉक्स का टाइम होगा कब? 21 मार्च। देन वी हैव इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर। Direct rays of sun falls on the equator, and at this position neither poles is tilted towards the sun. Whole earth experience equal day and equal night. इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दो तरीके के हमारे इक्विनॉक्सेस होते हैं, ऑटोनॉमिनल और आपके स्प्रिंग, जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। First of all, I will tell you the position on 21st March. The earth moves forwards on 21st March. North pole and south pole, they are neither inclined toward the sun or they are not away from the sun. The equator comes again to face the sun, which is directly over. Days and nights are equal. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज और नाइट इक्वल होती है, उसको हम वर्नल या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। All places on the earth have 12 hours day, 12 hours night as the circle of illumination passes through the poles, और ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 घंटे के दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। फिर है पोजीशन ऑन 23rd September. It is an autumn in the northern hemisphere and what it is called autumn equinox. अगर हम बात करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर की, इन सदर्न हेमिस्फीयर सीजन्स आर अपोजिट टू द सीजन। सीजन्स क्या है? अपोजिट होता है सीजन के नॉर्दर्न। अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो सदर्न में स्प्रिंग होगा। ठीक है, सदर्न में ऑटम है तो नॉर्दर्न में स्प्रिंग होगा। And thus the rotation and revolution of the earth or its celtic axis causes day and night, और वो different duration की होती है, और seasons भी क्या करते हैं? Change करते हैं day by day. Now adaptation of animals to different climates. The climate of the place influences vegetation, animal life, crop, वहाँ का food कैसा है, clothing क्या है, occupation क्या है. People and animal adapt to climate condition in different way. This is how people and animal is different. आपने देखा होगा अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह के एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। सो एनिमल्स लाइक पोलर बियर, रेनडियर, डॉग्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट जनरली हैव थिक फर। आपने देखा होगा पोलर बियर, उसके थिक फर होते हैं क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है। उसको ठंड से बचने के लिए उसके जो फर होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, और एक उनके फैट होता है बिलो द फेदरी कवरिंग, एंड दिस कीप्स देयर बॉडी वार्म। एंड व्हेन देयर इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो बर्ड है वो कहाँ माइग्रेट करके चली जाती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जिससे वो अनफेवरेबल जो कोल्ड कंडीशन है या वेदर कंडीशंस हैं उससे बचने के लिए वो सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है, और वापस वो अपने, जब विंटर आता है तो वापस, जब विंटर खत्म हो जाता है वापस अपने वही उसी जगह पे आ जाते हैं। तो इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स। Some animals like frogs, snakes, snails, bats go in a state of dormancy, मतलब इनएक्टिविटी के चले जाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन या समर हीट की वजह से। And they breathe slowly and their heart also beats slowly. During the winter they get energy from the fat stored in their body. ठीक है, जो उन्होंने विंटर से पहले अपनी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करते हैं उससे वो एनर्जी लेते हैं। And they get up from the sleep in winter or summer. These are the terms to know. You may do yourself. You must read them one by one. Now we have completed this chapter. Hope you understood. Let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.